Good morning, students. In chapter 5, algebraic expression, in the last class, we started exercise 5.4. In that exercise, 1 and 2 question are completed, and question 3a part we have done. So today we will start with the B part of question number 3, and that is evaluate the following for p is equals to -1, q is equals to -3 and r is equals to 7. उसी तरीके से करने हैं बेटा जिस तरीके से आपने पिछले क्वेश्चंस किए हैं सारे। ओके अर्शप्रीत, इस एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चन सेम हैं। आपको जस्ट ये जो वेरिएबल्स गिवन है इनकी वैल्यूज रखनी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में और उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ। द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज पी स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ओके श्रेया, देन यू हैव टू ओपन दैम फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, गुड कशिश। p square plus q square plus r square. P square means what? P into p. You know, whenever the power is 2, the number or variable will get multiplied with itself for 2 times. पावर 2 है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, प्लस यहाँ भी पावर 2 है तो q भी खुद से 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, प्लस आर स्क्वायर, आर की पावर भी 2 है तो आर भी खुद से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। नाउ यू कैन पुट द वैल्यूज ऑफ दिस वेरिएबल्स। p की वैल्यू गिवन है -1, सो इट विल बी -1 इंटू -1, प्लस q की वैल्यू आपको गिवन है -3, सो इट विल बी -3 इंटू -3। ओके रितेश, प्लस r की वैल्यू आपको गिवन है 7, सो इट विल बी 7 इंटू 7। ओके, नाउ यू कैन सॉल्व देम अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। वी हैव टू सॉल्व दिस मल्टीप्लीकेशन। -1 इंटू -1 देखिए 1 into 1 will be 1, and this minus when multiplied with the second minus then it will be plus। माइनस माइनस प्लस होता है ना, मल्टीप्लाई होते हैं। 3 3s are 9, again minus minus will be plus, 7 7s are 49। Now you can see only addition operation is there, add them। 9 plus 1 is 10 and 49 plus 10 is 59, so 59 will be the answer। Yes, this was B part of question number 3. I hope you all have understood how have I solved it. Then D part. D part is P square minus PQ plus R. This is the algebraic expression given to you. You have to solve them just putting values of variables P, Q and R. So first of all I will simplify them। ठीक है, I will open the terms। open the terms mean p square का मतलब p into p, उसको उसके simplest form में लिखना है। माइनस पी क्यू का मतलब है p into q and plus r alone है तो it will be written as it is। Now you can write the values of the variables। p is -1, so it will be -1 into -1। p again -1 into q is -3, प्लस r की वैल्यू गिवन है आपको 7, so it will be -1 into -1 will be +1। ये देखिए -3 एंड दिस -1 दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे so it will be +3। ओके, this minus and this minus will become +t when they will multiplied। then 3 into 1 is 3 और इनका प्लस साइन जब बाहर वाले माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा, ओके रक्षा, then it will be -+7। so you know, first of all we have to solve the addition। you can see 1 and 7 both are positive, add them, so it will be 8, -3 will come as it is and 8 minus 3 will be 5, so 5 will be the answer। Yes, good Mohit। So this is the D part। C part I will give you in the homework students, so don't worry about that। now the next is question number 4, find the value। again I told you, मैंने स्टार्टिंग में बोला था सभी क्वेश्चन सेम है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। so you have to find the value। A part is 8x plus 2y minus 3xy plus half x square। this is the algebraic expression given to you students, and the values of variables are x is equals to -3 and y is equals to 5। okay, now you have to solve it। so what we have to do, first of all open these terms। okay, 8x means 8 into x plus 2y means 2 into y
माइनस 3xy मीन्स तीनों ही आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बिकॉज आप देख सकते हैं नो साइन इज बिटवीन देम, और जब भी बीच में कोई साइन नहीं होता है इट मीन्स दे आर गेटिंग मल्टीप्लाइड. 3 into x into y. Okay, plus half is a fraction given to you in the question, and x square means you can see power is 2, so x will get multiplied with itself for 2 times. ओके, हाफ और एक्स स्क्वायर तो मल्टीप्लाई हो ही रहे हैं. एक्स स्क्वायर को मैंने ओपन किया है तो इट इज एक्स इंटू एक्स. नाउ पुट द वैल्यूज. 8 into x, 8 into x मीन्स -3. ओके, प्लस 2 into y, 2 into y वैल्यू इज 5, -3 into x into y, x और y की वैल्यूज पुट करनी है, दैट इज -3 into 5 प्लस हाफ इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू अगेन -3 into -3. ओके, नाउ आई हैव रिटन दैट स्टेप अगेन बिकॉज आई हैव टर्न द पेज. ओके, so you have to solve them. 8 into -3 will be -24. 8 3 is a 24, 8 is positive, 3 is negative, plus minus will be minus, plus sign is there, 5 2 is a 10. As you can see both are positive, so sign will be again positive. ये माइनस साइन इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी प्लस. 3 3 is a 9, 9 5 is a 45. देखिए, प्लस हाफ एज इट इज इंटू -3 को आप सॉल्व करेंगे, इट विल बी +9. 3 3 is a 9 and minus minus will get multiplied and give plus. Okay, so it is, पहले 10 and 45 को ऐड कीजिए, -24 प्लस, आपको पता है एडिशन फर्स्ट, 10 + 45 is 45, सॉरी 55, प्लस ये 9 इससे मल्टीप्लाई होकर के 9/2 हो जाएगा. 9 into 1 is 9 and denominator will come as it is 9/2. -24 plus 55 will be what it will be? Students, give me reply. Yes, give me reply fast. Yes, students. You. Yes. -24 and +55. You can see both are having opposite signs. जब भी साइन ऑपोजिट होते हैं तो आपको पता है इंटीजर सब्ट्रैक्ट होते हैं. सौरभ, इसमें एडिशन नहीं होगा क्योंकि 24 नेगेटिव है, 55 पॉजिटिव है. आपको पता है व्हाट इज द रूल फॉर द इंटीजर्स. If the signs are opposite, then integers will get subtracted. So 55 minus 24 will be 31. And because the number which is bigger, 55, is positive, so it will be +31. Plus 9/2 will come as it is. Now you can see 2 is the LCM for that. 31 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो LCM will be multiplied with the whole number as it is. आप जानते हैं 2 1s are 2 and 2 3s are 6. Plus sign is there. Now you can see the denominator of this fraction and the LCM we have taken are equal. दोनों सेम है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 1. 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 9. सो द आंसर विल बी 71/2. ओके, आई थिंक इट्स सिंपल. किसी को अगर समझ नहीं आया तो पूछ लीजिए एक बार. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 बी पार्ट इज रिटन हेयर. व्हाट यू हैव टू डू, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. सॉल्व मीन्स you have to add or subtract the like terms given in this expression. ये जो complete expression आपको दिया हुआ है इसमें कुछ like terms भी हैं, तो पहले आपको like terms को solve करके उनके signs के according उनको प्लस माइनस करके जो आंसर आएगा वो लिखना है, और find the value. उसके बाद में फिर आप वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करेंगे एंड देन यू विल फाइंड द आंसर. ठीक है, इसमें डायरेक्ट वेरिएबल्स की वैल्यू पुट नहीं करनी है आपको, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा आप शुरू में ही अगर वेरिएबल की वैल्यू रख देंगे. और क्वेश्चन में भी आपको गिवन है कि पहले आपको इसे सॉल्व करना है और उसके बाद में उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो सॉल्व करेंगे हम पहले. फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दैट वी हैव टू राइट लाइक टर्म्स टुगेदर. सो 2x के लिए लाइक टर्म क्या होगा, -9x. देन -3y के लिए लाइक टर्म -7y. देन +7xy. यस स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द लाइक टर्म फॉर 7xy?
for 7xy plus 3yx will be like term. हाउ, मैंने आपको जब लाइक टर्म्स बताई थी तो मैंने स्टार्टिंग में आपको ये चीज भी बताई थी, वेरिएबल सेम होने चाहिए, वेरिएबल्स एंड उनकी पावर्स। वेरिएबल्स देखिए एक्स वाई, क्या 3y(x) में एक्स वाई प्रेजेंट नहीं है? प्रेजेंट है। x है यहाँ और यहाँ भी है, y है यहाँ और यहाँ भी है, और दोनों की पावर सेम है, दोनों की पावर ही 1 है दोनों टर्म्स में। वेरिएबल पार्ट सेम हो गया ना। मैंने आपको बोला था आगे पीछे लिखे होंगे मल्टीप्लिकेशन में, उनका ऑर्डर अगर चेंज है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा जाता है, ठीक है। आपको तो वेरिएबल और उसकी पावर देखनी है, ओके। सो यहाँ पे जस्ट उनके ऑर्डर्स ऑपोजिट लिखे हुए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स वाई को हम वाई एक्स भी लिख सकते हैं, बोथ आर सेम, ओके। So 6 terms we have written, now only one term is remaining, that is plus 9x square y, okay. It is unlike term, इसके लिए कोई like term present नहीं है यहाँ पे, okay. Now solve them. You can see these both are like terms. So x is the variable part, I have written as it is. 2 minus 9 will be minus 7. 2 positive है, 9 negative है, opposite sign है, it will be subtraction. 9 minus 2 will be 7, and because 9 is the bigger digit, it is negative, so it will be minus 7, okay. Now you can see these both are also like terms. Yes, good Raksha. It will be minus 10y. दोनों के साइन सेम है ना, तो 3 और 7 ऐड हो जाएंगे 10, और जो बिगर डिजिट है ये नेगेटिव है तो माइनस 10y, ओके। अगेन 7xy एंड 3yx बोथ आर लाइक टर्म्स। अब आप इसको या तो xy लिख लीजिए या yx लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप इस xy को yx भी लिख सकते हैं, ओके। टर्न ऑफ योर स्पीकर। 7 plus 3 will be plus 10, दोनों ही पॉजिटिव हैं तो इट विल बी plus 10, एंड 9x स्क्वायर y के लिए कोई लाइक टर्म नहीं है तो इट विल कम एज इट इज। देखिए अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको दिया जाता है, बाय चांस किसी भी एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है, आपको पहले ये दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, आपने सॉल्व कर लिया, एंड फाइंड द वैल्यू, वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करके उसको फाइंड करना है। तो बेटा ये दो अलग अलग आंसर हो गए। फर्स्ट पार्ट इसका यहाँ तक है जहां तक हमने सॉल्व किया है, और सेकंड पार्ट में इसका वैल्यू फाइंड करना है। अगर आपको ये 2 मार्क्स में मिलता है तो आई थिंक दोनों के 1-1 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अगर 4 मार्क्स में मिलता है तो 2-2 मार्क्स। ऐसा नहीं कि हम ये तो ना लिखें और डायरेक्ट वेरिएबल डाल के वैल्यू निकाल दे तो आपको 2 ही मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपने इसको सॉल्व नहीं किया, आपने डायरेक्ट वैल्यू निकाली है, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि सॉल्व द एक्सप्रेशन, तो पहले उसको लाइक टर्म्स आपको दिख रही हैं तो सॉल्व करना है, 2 मार्क्स यहाँ तक के हो गए, और उसके बाद जब आप वैल्यूज पुट करेंगे वेरिएबल्स की, उसके लिए 2 मार्क्स अलग से होंगे। नाउ पुट x इज इक्वल्स टू -2 एंड y इज इक्वल्स टू 3। दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू पुट कर रही हूँ, उसके लिए पहले मैंने क्या किया, इनको सिंप्लीफाई कर लिया। -7x मीन्स -7 इंटू एक्स, -10y मीन्स -10 इंटू वाई, प्लस 10xy मीन्स 10 इंटू एक्स इंटू वाई, एंड दिस विल बी प्लस 9 इंटू, देखिए एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स की पावर 2 है तो इट विल बी गेटिंग मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ फॉर 2 टाइम्स, और इनटू में y गिवन है आपको। नाउ राइट द वैल्यूज, -7 इंटू एक्स की वैल्यू इज -2, -10 into y is 3, plus 10 into -2 into 3, plus 9 into x 2 times multiply हो रहा है तो -2 into -2, and y की वैल्यू गिवन है 3 तो it will be 3. Now solve them. 7 2 जा 14, माइनस माइनस will be plus, ये माइनस है, 10 3 जा 30, -2 जो है वो बाहर के प्लस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी माइनस, ये प्लस इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा माइनस, 3 2 जा 6 एंड 6 10 जा 60, देन ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएंगे तो इट विल बी प्लस, 9 2 जा या 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 12 9 जा 108। नाउ यू हैव टू सॉल्व देम। यू नो फर्स्ट हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। 14 minus 30 minus 6, sorry, 14 minus 30 will come as it is, -60 और plus 108 के बीच में you can see प्लस साइन है,
बट 60 नेगेटिव है, 108 पॉजिटिव है, दोनों के साइन ऑपोजिट है, तो इट विल बी सब्ट्रैक्शन। 108 में से 60 गया, कितना बचेगा बेटा? 48। इट विल बी 48 एंड 48 आएगा प्लस का। Why? Because the number which is greater 108 is positive, so it will be plus 48. Now again solve it, minus 30 plus 48, again दोनों के बीच में प्लस साइन आ गया ना, एडिशन सॉल्व करना है पहले, तो 14। देखिए यहाँ भी अगेन दोनों के साइन ऑपोजिट हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो सब्ट्रैक्शन होगा। 48 में से 30 माइनस करेंगे तो इट विल बी 18, एंड बिकॉज द नंबर विच इज बिगर इज पॉजिटिव, सो इट विल बी plus 18, and the answer will be 32. 14 plus 18 will be 32. So 32 will be the answer for this algebraic expression. It is the value for the given variables. Okay. So this was your class work for today, students. Tomorrow we will start exercise 5.5. 5.4 is completed today. Now your homework for today is exercise 5.4, question number 3 C part, question number 4 B part, and question number 5 A part you have to do in today's homework. Okay, other all parts we have covered in today's classwork. So these are your homework questions. Thank you.